बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.6 नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सेज हनीफ bought a car for 5.5 million. Cost price is given as 5.5 million. So it is not 5.5 million, 550,000. He sold it for 605,000. Selling price is 605,000, 605,000. After some time, find his profit percentage. What is, पहले हम profit find करते हैं. Profit क्या आता है? Selling price minus cost price. Selling price क्या है? 605,000 minus 550,000. तो इसका जब हम करेंगे ये आएगा 55,000. Let us calculate 605 and then 4 zeros, sorry 3 zeros minus 5 1 2 3 4 zeros, 55,000. So we'll get 55,000 profit. We need to find profit percentage. Profit percentage का फार्मूला क्या है? Profit percentage is equal to profit over cost price into 100. Profit कितना है? 55,000. Cost price है 550,000 into 100. %. So profit कितना है इसका? 10%. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन इजी था. Cost price is given, selling price is given. So we get the profit by calculating selling price minus cost price, which is equal to 55,000. Then we'll apply the formula for profit percentage, which is equal to profit over cost price into 100. So we get the answer 10%. Okay. Now we move to the second question, which says the market price of an article is 3,000. Market price is equal to 3,000. Discount on this article is 20%. Discount is 20%. Find the sale price of the article. Sale price. So first we need to find the discount. Discount is 20% of market price. 20 over 100 into market price is 3,000. 600 is the discount. So how much will be the sale price? Sale price is equal to market price minus discount. Market price is 3,000 minus 600 is 2,400. So sale price is 2,400. It was very simple. Market price is given, discount is 20%. So first we found the discount, 20% of market price, which is 600. So then we got sale price as market price minus discount. 3,000 minus 600 is 2,400. So this was question number 2. Then we will move to question number 3. Question number 3 says a manufacturer sells an article which cost him 2,500 at 20% profit. The purchaser sells the article at 30% gain. Find the final sale price of the article. A manufacturer sells an article with cost which cost him 2,500. Cost is given 2,500. And he sells at 20% profit. So his profit is how much? 20%. Then
द सेल प्राइस ऑफ manufacturer will be 20%. He will get 20% profit. So 500 will be profit. Okay. So his sale price will be cost plus profit. He will be selling on at 3000 का सेल करेगा, ठीक है। 2500 उसकी कॉस्ट प्राइस थी, 20% उसने प्रॉफिट लिया। जब हमने इसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो आ गया 500। 500 क्या है? ये है प्रॉफिट। हमने कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दिया प्रॉफिट, ये उसकी होगी सेल प्राइस मैन्युफैक्चरर की, ठीक है। द परचेजर सेल्स द आर्टिकल एट 30% गेन। अब जो कॉस्ट प्राइस है परचेजर की वो है 3000, तो वो जब सेल करेगा तो वो गेन, उसका प्रॉफिट जो होगा वो होगा 30%। हम देखते हैं उसका प्रॉफिट कैसे कितना बनता है। प्रॉफिट इज इक्वल टू 30% इंटू 3000, 900 उसका प्रॉफिट है, ठीक है। अब वो जब सेल करेगा, हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द फाइनल सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। जो सेल वो करेगा, सेल प्राइस वो क्या होगी, उसकी कॉस्ट कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट उसकी कितनी है 3000 प्लस 900 उसका प्रॉफिट है, तो वो 3900 में वो सेल करेगा, ठीक है। तो जो फाइनल सेल प्राइस है उस आर्टिकल की वो है 3900, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट मैन्युफैक्चर की थी 2500, उसने 20% प्रॉफिट लिया, तो हमने देखा कि उसकी सेल प्राइस क्या बनती है। हमने 20% का लिया तो वो आ गया 500 प्रॉफिट आ गया। इसमें 500 ऐड किया तो 2500 प्लस 500 3000 जो है वो उसकी होगी सेल प्राइस। अब ये सेल प्राइस जो मैन्युफैक्चर की है ये कॉस्ट प्राइस है परचेजर की। परचेजर क्या करता है, उस पर 30% प्रॉफिट लेता है। 30% पे लिया तो 900 उसका प्रॉफिट हो गया। जब वो सेल करेगा तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट उसका 3900 वो उस पर सेल करेगा, ठीक है। सो दिस वन अगेन वेरी इजी। नाउ विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 says the market price of every article was reduced by 12% in sale at a store. A cash customer was given a further 10% discount. जो initial discount थी वो थी 12%। उसके बाद क्या किया गया कि कैश कस्टमर वाज गिवन अ फर्दर 10% डिस्काउंट। तो जो सेकेंड डिस्काउंट थी वो थी 10%, दो डिस्काउंट्स थी। व्हाट प्राइस वुड अ कैश कस्टमर पे फॉर एन आर्टिकल मार्क्ड इनिशियली एज 2000, ठीक है। जो मार्क प्राइस है वो क्या है 2000, ठीक है। इस 2000 पे पहले इसको मिलेगी डिस्काउंट 10%, ठीक है। हम इस निकालते हैं डिस्काउंट। ये डिस्काउंट जो है वो कितनी बनती है, सेकंड डिस्काउंट 2000 का लेंगे हम 10%, तो 2 zeros विल गो विद दिस 200 डिस्काउंट होगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितनी होगी, ये 2000 है, इसमें 200 माइनस करेंगे 1800 रहेगा। अब ये जो 1800 है इसमें अनदर डिस्काउंट होगी। जो सेकंड डिस्काउंट है वो 10% है, 1800 पे वो मिलेगी 180, ठीक है। तो इसमें हमने जो है जो कस्टमर है वो कितनी पे करेगा, ठीक है। जो सेल प्राइस होगी
वो होगी 1800 में से माइनस करेंगे 180, ठीक है, ये हो गया 1620। सो इस तरह से हमने 4.6 का जो नंबर 4 है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। पहले 4 क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो ये हमने थोड़ा सा इसमें कोई मिस्टेक कर दी है। द मार्केट प्राइस ऑफ एवरी आर्टिकल वाज रिड्यूस्ड बाय 12% इन सेल एट ए स्टोर, अ कैश कस्टमर वाज गिवन अ फर्दर 10% डिस्काउंट। कि हम इस तरह से करेंगे कि जो डिस्काउंट जो है वो पहले जो दी गई इनिशियल क्या थी 12%, हम पहले ये डिस्काउंट फाइंड करेंगे जो सबसे पहले दी गई, ठीक है। तो हम डिस्काउंट फाइंड करेंगे इस तरह से, 2000 पे पहले दी गई 12%, 240, तो इसके बाद प्राइस क्या आ गई 2000 माइनस 240, ये होगी 1760। अब इसके ऊपर जो है फिर जो बाद वाली डिस्काउंट है ये अप्लाई होगी, %10 ऑफ 1760, 176। तो जो सेल प्राइस ऑफ आर्टिकल है वो हो जाएगी, ये जो 1760 है इसमें से 176 माइनस करेंगे 176, $1584। तो 1584 जो है ये प्राइस है जो कि कस्टमर पे करेगा। अगेन आपको बताते हैं कि एक जो है आर्टिकल पे जो इनिशियल डिस्काउंट है वो 10% दी गई, फिर कस्टमर ने वो जो है कैश पे किया, उसको फर्दर 10% दिया गया, तो उसने पे किए, उसने जो है ना कितने पे करने हैं ये हमने बताना है। उसकी मार्केट प्राइस जो है ना वो मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस है उसके ऊपर जो दर्ज थी, ये मार्केट नहीं है, ये है मार्क्ड प्राइस, ठीक है, 2000 है। सबसे पहले हम 2000 पे ये 12% डिस्काउंट अप्लाई करेंगे, 240, 2000 में से 240 गया 1760, फिर 1760 पे फिर हम 10% डिस्काउंट देंगे, वो बन गया 176, उसको माइनस किया इसमें से तो 1584 ये पे करेगा कस्टमर, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी सॉल्व कर लिया। नाउ विल बी मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज Tahir purchased 2 toys for his children. He buys Spider-Man and Barbie doll for 3000 and 5000 respectively. If a discount of 20% is given on all toys, find the amount of discount and the sale price for each toy. ठीक है, उसने एक परचेज किया स्पाइडरमैन, ठीक है, स्पाइडरमैन एंड बार्बी डॉल, 3000 का स्पाइडरमैन और जो बार्बी डॉल है इसकी प्राइस थी 5000, ठीक है जी। सो इफ अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन ऑल टॉयज, 20% डिस्काउंट इस पे है और 20% डिस्काउंट इस पे है, ठीक है। तो हम जो है अगर दोनों की टोटल प्राइस है 3000 प्लस 5000, ये बन गया 8000, इस पे जो डिस्काउंट है वो है 20%, 20% ऑफ 8000, 1600, तो 1600 जो है वो डिस्काउंट है, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है कि हर टाई की प्राइस कितनी है। अब स्पाइडरमैन जो है ये 3000, ठीक है, इस पे डिस्काउंट है 20%, ठीक है, इस पे जब हम 20% अप्लाई करेंगे तो 600 डिस्काउंट आ गई। तो जो स्पाइडरमैन पे ये डिस्काउंट है तो प्राइस कितनी होगी इसकी, प्राइस ऑफ स्पाइडरमैन 3000
माइनस 600 2400। इस तरह से जो बारबीडॉल है इसके ये 5000 की थी, इस पर जो डिस्काउंट है 20% है। 1000 डिस्काउंट हो गई, ठीक है, ये है डिस्काउंट। तो जो बारबीडॉल है उसकी प्राइस कितनी है 5000 माइनस डिस्काउंट इक्वल टू 4000। 4000 डिस्काउंट प्राइस है बारबीडॉल की। इस तरह से हमने टोटल डिस्काउंट भी फाइंड कर ली और दोनों आर्टिकल्स जो है उनकी अलग अलग प्राइस जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया सॉल्व। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 says, the buyer buys some items from a store, a special discount of 15% is offered on food items and 20% on other items. If he purchases food worth 1250, food जो है उसकी प्राइस क्या है ये है, and other items worth other items की कितनी है 750. Find the amount of discount and sale price of each separately, ठीक है। अब इसको इस पे मिल रही है 15% और इस पे इसको मिल रही है 20%। तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड सेल प्राइस। अगर हम जब हम फूड की बात करेंगे तो इस पे जो डिस्काउंट है वो 15% है। 15/100 इंटू 1250, 0 से कट गया, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ये आ गया 375/2। तो ये आ जाएगा 187.5 ये डिस्काउंट आ गई, ठीक है। जो अदर आइटम्स है इस पे जो डिस्काउंट होगी, अदर आइटम्स जो है वो 750 के हैं और 20% डिस्काउंट है। तो 150 जो है वो डिस्काउंट मिल गई अदर आइटम्स पे। तो सेल प्राइस क्या होगी, ये जो फूड है इसकी सेल प्राइस होगी 1250 माइनस 187.50, ठीक है। और जो अदर आइटम्स हैं इनकी सेल प्राइस होगी 750 माइनस डिस्काउंट इज 150, 600 बन गया, ठीक है। तो वो जो पहले वाला है उसमें हम करते हैं कैलकुलेट, 1250 माइनस 187.5, 1062.5, 10.5। तो ये अभी हमने एक्सरसाइज 4.6 जो है उसका हमने किया था 6th क्वेश्चन। तो 187.50 आंसर आया और 1062.5 दोनों हमारे आंसर ठीक है। फूड इतनी प्राइस लिखी हुई थी, उस पर डिस्काउंट थी 15%, तो 15% हमने कैलकुलेट किया तो ये बन गया 187.5। और जो अदर आइटम्स है वो उनकी प्राइस ये लिखी हुई थी, 20% डिस्काउंट हमने फाइंड किया, ये बन गया, ठीक है। ये दोनों की अलग अलग डिस्काउंट आ गई। इसमें से डिस्काउंट ये माइनस किया तो ये प्राइस पे करेगा, और इसमें से डिस्काउंट माइनस की तो 600 पे करेगा। सो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन जो है ये भी सॉल्व कर लिया। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। होलसेलर सेट्स हिज सेल प्राइस बाय एडिंग 15% टू हिज कास्ट प्राइस। अब उसकी जो कास्ट प्राइस है उस पर वो चार्ज कर रहा है प्रॉफिट 15%, होलसेलर, ठीक है। द रिटेलर एड्स 25% टू द प्राइस ही पेज टू द, जो रिटेलर है, ठीक है। ये कास्ट पे जब हम लगाएंगे 15% तो जो आंसर आएगा, ठीक है, यानी ये जो कास्ट है इस पर 15% लगाएंगे तो हम 115% पे पहुंचेंगे। हम इस तरह से भी कर सकते हैं, कास्ट 100% है, 15% उस पर ऐड करना है प्रॉफिट, तो हमने फाइंड करना है 115%, ठीक है। ये जो 115% होगा ये रिटेलर की कॉस्ट बन जाएगी। ये जो 115% है
ये बन जाएगी रिटेलर की कॉस्ट, ठीक है। नाउ रिटेलर एड्स 25% टू द प्राइस ही पेज। अब ये इस पे जो है ना 25% जो है ना वो ऐड कर देता है, अपना मार्जिन उस पर ऐड कर देता है, ठीक है। वो उसकी हो जाएगी सेल प्राइस। एट व्हाट प्राइस वुड अ रिटेलर सेल एन आर्टिकल विच कॉस्ट द होल सेलर 400। अब इसको जो है ना ये 400 की पड़ी थी, ठीक है। तो हमने इसकी जो है वो फाइंड करनी है सेल प्राइस, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉस्ट जो है 400, इस पे प्रॉफिट है, हम इस तरह से भी कर सकते हैं लेकिन हम सिंपल तरीके से आपको करके बताते हैं। प्रॉफिट 15% है, तो 15% प्रॉफिट है 400 पे 60 रुपीज़, ठीक है। तो जो रिटेलर की ये होलसेल रिटेलर की जो कॉस्ट बन जाएगी वो हो जाएगी 400 प्लस 60, 460 में रिटेलर को कॉस्ट करेगा, ठीक है। अब जो प्रॉफिट जो है रिटेलर का वो है 25%, ठीक है। तो जो रिटेलर की सेल प्राइस है वो होगी 25% इंटू 460, ये उसका मार्जिन है 25%, तो ये ऐसे हो गया, बल्कि 25 4 जा 100, तो 115, ये 115 रुपये जो है ना ये प्रॉफिट है, ठीक है। ये है रिटेलर का प्रॉफिट। तो जो रिटेलर है उसकी जो सेल प्राइस होगी वो क्या होगी, इसकी कॉस्ट जो थी रिटेलर की 460 थी, इसमें 115 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 575, ठीक है। दोबारा से आपको बताते हैं, एक कॉन्सेप्ट ये भी है 100 से 100 ये 115% करने का, इसको छोड़ दें, ये आपको मुश्किल लगेगा। हम आपको सिंपल ये बताते हैं, होल सेलर को मिल रही एक चीज़ 400 की, उसने उसके ऊपर 15% प्रॉफिट लिया, तो हमने 400 का 15% जब लिया तो वो बना 60, तो 400 में 60 ऐड कर दिया तो वो बन गई रिटेलर की कॉस्ट, उसने बेचा रिटेलर को 460, ठीक है, 460। अब जो रिटेलर ने क्या किया, उसने जो 460 में परचेज की उसके ऊपर 25% प्रॉफिट चार्ज कर लिया, तो 460 का हमने 25% लिया तो 115 रुपये उसका प्रॉफिट बन गया। अब रिटेलर जो है वो किस रेट पे सेल करेगा, वो जो उसकी कास्ट है 460 उसमें उसका प्रॉफिट 115 ऐड कर दिया तो 575 रुपये में वो सेल करेगा। यही हमने फाइंड करना था। इस तरह हमने 4.6 जो है वो कंप्लीट कर ली।